السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ فارمر MLA غداری کشور نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سیاسی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ انہیں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ ریونت ریڈی، کچھ راونت ریڈی اور کچھ دوسرے القاب استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کے سیاسی تنقیدی ریمارکس کا حصہ تھا۔ ان کے اس بیان کے بعد تلنگانہ کی سیاست میں لفظی جنگ اور سیاسی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. SIR فارم کے نام پر پیسہ وصولنے والوں کو AIMIM کی سخت وارننگ۔ وجے نگر کالونی میں SIR انومریشن فارم کے لیے پیسہ وصولنے کی شکایت پر AIMIM چیف اسد الدین اویسی کی ہدایت سے ایکس کارپوریٹر ڈاکٹر قاسم اور ایکس کارپوریٹر ظفر خان نے سروس سینٹرز کا سرپرائز انسپیکشن کیا۔ دونوں لیڈرز نے آپریٹرز کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی ہے کہ SIR فارم کے لیے عوام سے 1 روپیہ بھی وصول نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر قاسم نے کہا کہ اگر کسی نے SIR فارم کے نام پر پیسہ لیا تو اس کے خلاف FIR الیکشن کمیشن میں شکایت اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ SIR فارم مفت بھروائیں اور کسی بھی قسم کی فیس ادا نہ کریں۔ بار کوڈ آپ زیروکس، یہ فارم BLO جب آپ کو دے دیا تو اس کو زیروکس نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر بار کوڈ ہے، رف نہیں کرنا ہے۔ آپ رف کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا رف کر کے بھی 100 روپے لے رہے ہیں آپ، پھر 100 روپے دیے بول رہے نا آپ؟ یہ کون دیے؟ پیسے دیے آپ پھر فری میں بھر کے دیا نا آپ کو؟ جگہ جگہ مجلس کی جانب سے کاؤنٹر سے آپ کو ہر جگہ پورے ذمہ دار پوری طرح سے ہمدردی میں پورے میدان میں مہیلا منڈل میں مرجان ہوٹل کے سامنے آفس میں فری کیمپ لگائے اس کا بھرنے کا، فری کیمپ ہم لوگ خود بھیجے، وہاں جاؤ جی وہاں مل جاتا ہے، ڈور نمبر مارو 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 بول رہے، کیسا ماریں گے؟ آپ لوگوں کو ہے آپ سنیے، ڈور نمبر جھوٹ مت بولیے، آپ ایکسپٹ کریے، آپ پیسے لیے، جھوٹ بولیں گے تو برابر آپ کے اوپر کیس بک کرا دیں۔ آپ پیسے لیے لوگوں کو، آپ بالکل ایکسپٹ کریے، آپ آئندہ نہیں کریں گے، ہمدردی کے طور پہ چھپڑ جائیں۔ لیکن آپ لیے نا پیسے؟ ہاں بالکل لیا، میں یہ نہیں بول رہا ہوں بھائی غلط ہے فورس کرنے سے، میں بولا بھائی پیسے لے دو، ان کا چھوڑ دو۔ آپ کو جو بھی پوچھ رہے ابھی بہت پروف بنا دو، آپ ایسا بولیں گے تو آپ مجھے نہیں بڑھتا۔ میں سنیے آپ کو جو بھی پوچھ رہے آپ 100 روپے لے رہا ہوں، میں آف لائن رہو آن لائن رہو، 100 روپے میں چارج کروں ایک فارم، کیا بول رہے؟ آپ اپنی بات کو مانیے، ورنہ میں CI کو فون کروں گا، بلاؤں گا، کیس بک کراؤں گا۔ آپ بول دیے، مانیے، غلطی ہو گئی، نادم ہوئی ہے، یہاں پہ قصہ بند کریے آپ۔ جی بالکل بالکل۔ اور آپ کو کوئی آئے تو آپ بول دیجئے MLA صاحب کے آفس پہ جاؤ بولیے، یا مرجان ہوٹل کے سامنے جاؤ بولیے، کوئی بھی آئے تو آپ یہ بولیے، پیسے مت لیجیے۔ اگر آپ کو حیدرآباد کے سلکم چیرو میں واقع اویسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے معاملے پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کورٹ نے کہا کہ پہلے بھی رپورٹس پیش کرنے کے لیے ہدایت دی گئی تھی، لیکن تقریباً 3 مہینے گزرنے کے باوجود مکمل وضاحت نہیں دی گئی۔ سماعت کے دوران مختلف ڈپارٹمنٹس کے لائرز نے الگ الگ وجہ پیش کی۔ ہائیڈرا نے کہا کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے رپورٹس کے بعد ہی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ GHMC نے مزید 4 ہفتوں کی مہلت مانگی، جبکہ HMDA نے کہا کہ معاملہ لیک پروٹیکشن کے دائرے میں آتا ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کلاسز کی پرمیشنز پر وضاحت کے لیے 1 ہفتہ مانگا، جبکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ریونیو آفیشل سے اسکیچ نہ ملنے کی وجہ سے FTL کا تعین نہیں ہو سکا۔ ان جوابات پر جج نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتنی مہلت دینے کے باوجود ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور ہائی کورٹ نے آخری بار 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اگر اس مدت میں مکمل رپورٹ اور وضاحت پیش نہیں کی گئی تو کورٹ خود مناسب آرڈرز جاری کرے گی۔
हैदराबाद पुलिस के एच-फास्ट ने फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ सिर्फ 100 दिनों में बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 185 केसेस दर्ज किए और 121.87 टन एडल्ट्रेटेड और अनसेफ फूड जब्त की गई। अशिया में 60 टन से ज्यादा चिकन वेस्ट, 27 टन फेक जिंजर गार्लिक वेस्ट, 25.8 टन केमिकल से रिपेन किए गए फ्रूट्स के अलावा एडल्ट्रेटेड पनीर, खोवा, टी पाउडर, घी, कर्ड, क्रीम और सबस्टैंडर्ड मीट भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मजीद 247 केसेस को कानूनी कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के हवाले किया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और वीसी सजनान ने तनबीह की है कि बार बार फूड एडल्ट्रेशन में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अथॉरिटीज ने शहरियों से अपील की है कि फूड एडल्ट्रेशन की कोई भी मालूमात फौरन 100 नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप 8712661212 पर रिपोर्ट करें। सीनियर कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एडवाइजर और सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव VH की मिजाज पुरसी की। इस मौके पर डॉक्टर पूर्णचंद्र रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। जाना रेड्डी ने VH की सेहत और जारी ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर से तफसीलात मालूम की। उन्होंने वी हनुमंतराव की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द सेहतमंद होकर अवामी खिदमत में वापस लौटेंगे। हैदराबाद के कुकटपल्ली में फर्नीचर फ्यूजन शोरूम में आधी रात के वक्त बड़ी आग लग गई। मुकामी लोगों ने शोरूम से अचानक उठती हुई शोले और घना धुआं देखकर फौरन फायर डिपार्टमेंट को इतला दी। इतला मिलते ही फायर पर्सनल मौके पर पहुंचे और काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त शोरूम के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अथॉरिटीज आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रहे। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सुषमा थिएटर के करीब एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो नगर की तरफ जा रही एक कार R&B स्टाफ की जानिब से रोड डिवाइडर के साथ एलिजिडली लापरवाही से रखे गए सीमेंट ब्लॉक से टकराकर पलट गई। इस दौरान पीछे से आने वाले एक टेम्पो ने पलटी हुई कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद में से 2 अफराद के सर पर शदीद चोटें आई और उन्हें बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया और हादसे की तहकीकात जारी है। तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव ने राम टेम्पल डोनेशन रो पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि अगर किसी किस्म का लैप्स हुआ है तो गवर्नमेंट जरूर एक्शन लेगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तारियां पहले ही की जा चुकी हैं। रामचंद्र राव ने कहा है कि हर नेशनल सॉन्ग एक सेक्युलर सॉन्ग होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस पोएट्री पर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने रिलीजियस पोएट्री रिसाइट ना करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कोर्ट ने ये बात किस कंटेक्स्ट में कही थी। उनके इस बयान के बाद राम टेम्पल डोनेशन रो पर सियासी बहस और तेज होने का इम्कान है। It has been given, but in what context which OIC understood it. Indian, every song, every national symbol and in every national song is a secular song. Mr. OIC cannot compare it with any religion. So he cannot compare the राम टेम्पल डोनेशन से मुतालिक सामने आए इल्जामात पर सियासी रिएक्शंस का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन फखरुल हसन चांद ने RSS की मजम्मत पर रिएक्शन देते हुए कहा कि स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लिया जाता। उनका कहना था कि सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली कदम उठाना जरूरी है। फिलहाल डोनेशन थेफ्ट क्लेम्स और इस मामले पर मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई का इंतजार है। सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था पे चोट हुई है और जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी समाजवादी पार्टी समझती इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं।
मुंबई से वेदर अपडेट। हेवी रेन्स और लो विजिबिलिटी के सबब वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन सर्विसेज मुतासर हो गई हैं। मुंबई में मुसलसल हेवी रेन्स और कम विजिबिलिटी की वजह से वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन्स माइनर डिलेज के साथ चल रही हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन से सामने आने वाले विजुअल्स में मुसाफिरों की भीड़ और बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। रेलवे अथॉरिटी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मुसाफिरों को सफर से पहले ट्रेन टाइमिंग्स चेक करने और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वरून सुटेल ही लोकसेवा पोस्ट रेजिस्ट्रेशन सुरू होतो ट्रेनची रिअल टाइम माहिती। राजस्थान से डेवलपमेंट की अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। नया टर्मिनल पैसेंजर्स को बेहतर फैसिलिटीज फराहम करेगा और रीजन में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। नए टर्मिनल से मुसाफिरों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलने की तवक्को है। लखनऊ से सियासी हलकों की अहम खबर। बीजेपी प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट लीडरशिप के साथ एक अहम मीटिंग की। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की। मीटिंग में हुकूमती उमूर, तंजीमी मामलात और मुख्तलिफ डेवलपमेंट इशूज पर गुफ्तगू की गई। मीटिंग के तफसीली एजेंडा और फैसलों का इंतजार है। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नया तनाज़ा सामने आया है। टीएमसी एमपी सौगाता रॉय ने बाकी टीएमसी एमएलएस पर बीजेपी की हिमायत का इल्जाम लगाया है। सौगाता रॉय का कहना है कि रेबल टीएमसी एमएलएस बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक रेटाब्राता फैक्शन ने टीएमसी के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पर जाकर ताला लगा दिया। रॉय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ताला तोड़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिलहाल इस मामले पर दूसरे फैक्शन या पुलिस की तरफ से कोई तफसीली रिएक्शन सामने नहीं आया। Prevented them from doing so. Police said that you can't touch their lock. So this is an effort made by so-called dissident. भिवांडी महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 बाटी भाजी मार्केट एरिया में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई, जिसकी वजह से मार्केट और गिर्द व नवाह के इलाकों में पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिश के सबब 3 बाटी भाजी मार्केट में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासर हुई। दुकानदारों और खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।